हाँ हाँ हाँ, ठीक है ओके। Everybody please wait for 2 seconds, 2 minutes. हेलो। हाँ हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम। हाँ जी सर। गुड आफ्टरनून ठीक है एवरीवन, मैम, प्लीज स्टार्ट मैम। हाँ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। हाँ ओके ओके, स्क्रीन इज विजिबल। यस मैडम, विजिबल। ओके ओके ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके। Good afternoon to all. Myself Ekta Arya from NIC E-Office Project Division, and today I will give you the training of E-Office new version from 6 to 7. What is the changes of the new version? Okay, I will explain one by one. First of all, login process. Login process is the same as previous version. Login ID and password it will be same. ओके तो जो भी आपकी लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, वो आपका पूरा टोटली सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे जब आप नया वर्जन ई ऑफिस का यूज करेंगे। यूआरएल आपका सेम रहेगा, ठीक है। देन यू विल एंटर द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, देन साइनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द होम पेज ऑफ द ई ऑफिस। ओके, ये आपका ई ऑफिस का होम पेज है। फर्स्ट ऑप्शन इज होम, यू विल क्लिक ऑन द होम बटन, तो दिस इज द होम पेज ऑफ द ई ऑफिस। ठीक है, तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज द चेंजेस। ठीक है, तो जो भी फील्ड्स आप लोग यूज करेंगे मैं वही फील्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सेकंड ऑप्शन इज ई फाइल। Basically e files divides into many parts, but you have to use only two column usually. First is receipt column and second is file column. Okay, receipt module and file module. Next option is KMS, knowledge management system. Knowledge management system just like a office library. ओके, जो भी आप नोटिस बोर्ड पे पब्लिश करते हैं, ठीक है, आपके ऑफिस में सर्कुलर्स वगैरह निकलते हैं, तो यू कैन पुट ऑन योर नोटिस बोर्ड वाया डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। Then other services, first option is PIMS, Personal Information Management System. Basically, PIMS is a admin related activity, like how to create a new employee in e-office, how to change the designation, how to create a new post, okay, how to assign the OU also. So this activity is completed in the PIMS application. Next option is MDM, Master Data Management. Okay, so file heads related data, it will be included in the Master Data Management. It is a super admin activity. Next option is MIS, means Monthly Pendency Report. You can see and you can view the pendency reports with the help of MIS report option. Okay. Next is to-do list, task and notes. Three options are here. First option is to-do list, like you have to create the to-do list for itself. Okay, तो आप यहाँ से to-do list create कर सकते हैं, create to-do list then save. Okay, ये आप अपने लिए यहाँ पर बना के रख सकते हैं। आप इसको किसी के साथ मतलब शेयर भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। Next option is task. You will click on the task option. So you can assign the task with your team members. Okay. So you will click on the plus sign. अगर आप ये ऑफिस से रिलेटेड कोई टास्क किसी को असाइन करना चाहते हैं तो वो आप असाइन कर सकते हैं इजीली। यू कैन एंटर द टाइटल, यू कैन एंटर द डिस्क्रिप्शन, देन सेट ड्यू डेट एंड असाइन टू। तो जो भी आपके सेक्शंस में यूजर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, उनके नेम आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, तो आप उनको कुछ भी टास्क असाइन कर सकते हैं with assign the due date also. Okay, next option is notes. You will create also notes, like आप कोई notes prepare करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ बना के रखना चाहते हैं, उस केस में आप यहाँ से notes भी यहाँ पर add कर सकते हैं with the help of title column, with the help of description और then save. ओके, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज डाउनलोड फॉर्म्स एंड डिपार्टमेंटल एस, बोथ ऑप्शंस रिलेटेड टू द सुपर एडमिन एक्टिविटी, आपको ये यूज नहीं करना है। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज राइट हैंड साइड इज ए टीम मेंबर्स नेम। तो ये टीम मेंबर्स के नेम आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, जो भी आपके टीम मेंबर्स के नेम होंगे विद डेजिग्नेशन, यू कैन सी, यू कैन व्यू। Okay, next option is gallery, directory, events and contacts. तो all options are same as previous version. ये previous version के home page पे भी options available थे, आप इनको यहाँ से भी देख सकते हैं। Now you will click on the directory option, तो you can find out the any employee designation के through आप यहाँ से find out कर सकते हैं किसी employee का email ID आपको चाहिए, contact number चाहिए, filter by designation, filter by department. So both options are here. You can search on the employee name, email ID and contact number with your employee. Okay. तो ये सारे options आपके पास यहाँ पर मिले हैं. Now click on the e-file. In front of you, this is the inbox of the file. ये आपका फाइल का इनबॉक्स है. जैसे ही आप ई फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपका फाइल का इनबॉक्स ओपन हो जाता है. Okay, ये 3 lines var menu. This is the navigation menu. Now click on this line menu. This is the receipt module and this is the file module. Okay, तो first of all I will explain in the receipt module what is the changes. ठीक है, तो मैं जो receipt module में changes हुए हैं वो मैं पहले आपको explain करती हूँ, then उसके बाद file हम explain करेंगे. Okay, now click on this receipt module. All options are same as previous version. ये सारे options जो left panel में आपको दिख रहे हैं ये आपके same रहेंगे old version में. ठीक है, इसमें कोई भी change नहीं हुआ है. Now next is use and diarize in electronic format. Okay, तो what is the process of diarization ये आपको पता है. ठीक है, but इसमें जो जो चीजें add on हुई हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिसीव एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम अदर साइड. तो उसको आप क्या करते हैं, फर्स्टली यू विल स्कैन ऑल दी पेपर्स एंड सेव इन योर सिस्टम इन पीडीएफ फॉर्मेट. ओके, तो आप पीडीएफ में उसको कहीं पर सेव कर लेते हैं, देन अपलोड द डॉक्यूमेंट इन लेफ्ट हैंड साइड. तो यू विल क्लिक ऑन दी अपलोड बटन. तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हुआ है आपने स्कैन करके अपने सिस्टम में कहीं पर सेव किया है, आप उसको यहाँ पर स्कैन करके और एज ए पीडीएफ इसको अपलोड करेंगे. ओके, नाउ राइट हैंड साइड इज ए नेचर डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली रहेगा आपका. और डिटेल्स आएंगी डायरी डिटेल्स. ठीक है, इसमें 3 फील्ड्स आर मैंडेटरी, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, रिसीव डेट, डिलीवरी मोड. ओके, तो रेड स्टिक मार्क, दिस इज द मैंडेटरी फील्ड. ओके, तो ये आपको फिल करना ही है, आप इसको अनफिल नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइज ये एक अलर्ट मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज डायरी डेट. डायरी डेट मीन्स कि किस दिन आप इस लेटर की डायरी कर रहे हैं. यू कांट एडिट, यू कांट डिलीट, यू कांट चेंज. ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कंप्यूटर खुद से जनरेट कर रहा है. फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन फिल, और लाइक ये जो लेटर है आपको रिसीव हुआ है ये एक बिल है, कोई सर्कुलर है, कोई डायरेक्शन है, तो यू कैन चूज इट फ्रॉम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कॉलन. नेक्स्ट लैंग्वेज कि इस लेटर का लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश में आया है, आपको हिंदी में आया है, बंगाली, पंजाबी, किस में रिसीव हुआ है, तो यू कैन सेलेक्ट लैंग्वेज कॉलन. रिसीव डेट, ये लेटर किस दिन आपको रिसीव हुआ है. देन लेटर डेट, इस लेटर के ऊपर अगर कोई डेट मेंशन है तो यू कैन राइट ऑन द लेटर डेट. लेटर रेफरेंस नंबर, यू कैन राइट ऑन द लेटर रेफरेंस नंबर. नेक्स्ट इज डिलीवरी मोड, मीन्स कि ये लेटर आपको किसके थ्रू रिसीव हुआ है, बाई हैंड, बाई पोस्ट, ईमेल के थ्रू, तो यू कैन राइट ऑन द डिलीवरी मोड कॉलन. नेक्स्ट इज मोड नंबर, सेंडर टाइप, देन वीआईपी रेफरेंस. अगर ये लेटर किसी वीआईपी से रिलेटेड है तो यू कैन सेलेक्ट द वीआईपी कॉलन ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्टेक्ट डिटेल्स. कॉन्टेक्ट डिटेल्स में फर्स्ट ऑप्शन इज एड टू एड्रेस बुक. नाउ फर्स्ट चेंज इज add to address book for self, section and instance. As previous version only one option is available for self. Now in new version जो आप 7 वाला version यूज करेंगे, 3 options are here. First is self, second is section, third is instance. तो जो मेटा डेटा आप सेव करेंगे तो वो आप सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं सेव, इंस्टांस लेवल पे भी सेव कर सकते हैं, फॉर इटसेल्फ के लिए भी कर सकते हैं. तो 3 options are here. Okay. Next is Ministry Department and Others. Ministry Department and Others is a combined field in versions new. ठीक है, यहाँ पर ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स का हमने जो कॉलन है वो कंबाइन कर दिया गया है. ठीक है, पहले वाले वर्जन में जो आप अभी यूज कर रहे हैं उसमें क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मतलब आप पहले मिनिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं, उसके अंडर में डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते थे, देन उसके अंडर में आप पूरा डेटा फिल करते थे.
बट नाउ इन न्यू वर्जन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड अदर्स इज ए कंबाइंड फील्ड। ठीक है, तो 2 मेथड्स हैं, आप यहाँ पे 2 मेथड के थ्रू अपना ये कॉलम फिलअप कर सकते हैं। आप यहाँ पर खुद से टाइप कर सकते हैं, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नेम इज शोइंग। ठीक है, और अगर आप खुद से टाइप नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर, तो दिस इज द सर्च बटन, यू विल क्लिक ऑन द सर्च बटन, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड अदर्स नेम इज शोइंग, तो यू कैन सेलेक्ट देन ओके। ओके, अगर आप इसमें कुछ और एड ऑन कराना चाहते हैं लाइक कोई अदर मिनिस्ट्री अदर डिपार्टमेंट, तो इजीली आप इसको ऐड करा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेम एंड डेजिग्नेशन। नेम एंड डेजिग्नेशन में वन फील्ड इज मैंडेटरी, आइदर नेम आइदर डेजिग्नेशन। आप यहाँ पर नेम फिल करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर एकता के नाम से पहले जो एंट्री हुई है तो हमने सेव किया था, तो इसलिए वो एंट्री दिखा रहा है। अगर ऑटोफिल आपको करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोफिल सारी डिटेल्स हमारी फिल हो जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज category and subject. What is the main category of this letter? So you can select the main category. What is the subcategory? Okay, then enter the subject. Okay, now next is enclosure and remark. अगर आपको इस लेटर के साथ कोई एक्स्ट्रा CD, DVD, स्पायरल बुक, एनेक्स्टर कुछ भी रिसीव हुआ है जिसको आप स्कैन नहीं कर सकते, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लाइक CD, DVD, स्पायरल बुक, इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट इज पर्सनलाइज एक्नॉलेजमेंट। पर्सनल एक्नॉलेजमेंट मींस कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट। एज प्रीवियस वर्जन में आप ये वाली टर्म यूज करते थे, कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट मींस कंफर्मेशन मैसेज। जहां से लेटर आपको रिसीव हुआ है, आपको उन्हीं को कंफर्मेशन देना है, आई हैव रिसीव योर लेटर ऑन दिस डेट ऑन दिस टाइम। उस केस में यू विल यूज द पर्सनल एक्नॉलेजमेंट कॉलम, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ए ऑप्शनल फील्ड। ओके, next is generate and send, generate and copy. 3 buttons are here. ठीक है, तो इन तीनों बटन्स में क्या डिफरेंस है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन इज जनरेट। इफ यू विल क्लिक ऑन द जनरेट बटन, तो रिसिप्ट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड सेव इन योर क्रिएटेड फोल्डर ऑफ द रिसिप्ट। ठीक है, पहले भी यही होता था कि जब आप किसी रिसिप्ट को जनरेट करते थे तो ये जो क्रिएटेड फोल्डर है रिसिप्ट के अंडर में यहाँ पर जाके सेव हो जाती थी, अभी भी वो क्रिएटेड में जाके यहाँ पर सेव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज जनरेट एंड सेंड बटन। इफ यू विल क्लिक ऑन द जनरेट एंड सेंड बटन, तो रिसिप्ट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और डायरेक्टली वो आपको सेंडिंग वाली विंडो पे लेके जा रहा है। ओके, तो सेंडिंग वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, आप इस रिसिप्ट को, इस पेपर को सेंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज जनरेट एंड कॉपी बटन। ठीक है, अगर आप जनरेट एंड कॉपी बटन पे क्लिक करते हैं तब भी एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, इसको एक डायरी नंबर मिल जाएगा, और वन अनदर कॉपी हैज बीन क्रिएटेड मींस की ये जो मेटा डेटा है ये आपका पूरा फिर से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, एट ए टाइम, और जो डॉक्यूमेंट है केवल आप अपना डॉक्यूमेंट, जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे और चेंज द सब्जेक्ट ऑफ दिस लेटर देन जनरेट, तो ये अनदर कॉपी भी इसकी जनरेट हो जाएगी। तो 3 बटन्स आर हियर। तो इस पेज पे जो चेंजेस थे वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, लाइक एड टू एड्रेस बुक, 4 सेल सेक्शन एंड इंस्टेंस। Second is ministry department and others is the combined field. You can search and you can write on the ministry and department name also. Then address book is available in the name column. Next is personal acknowledgement term change from customized to personal acknowledgement option. Then next is generate and copy button is also available in the diarization page. Okay, तो ये सारे changes हुए हैं इस वाले पेज पे. Now click on the generate button. This message, ठीक है? This is the alert message. Sorry, this is the notification message, like success message you have to receive every time. जैसे आप ई ऑफिस के अंदर कोई भी फाइल सेंड करते हैं, रिसिप्ट सेंड करेंगे अभी, या रिसिप्ट को जनरेट करेंगे, फाइल को क्रिएट करेंगे, तो एवरी टाइम दिस टाइप ऑफ मैसेज रिसीव। ठीक है, तो ये सक्सेस का मैसेज आपको रिसीव हुआ है। दैट मीन्स कि रिसिप्ट नंबर 15139/2024 टेक्निकल सेक्शन सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, तो इस टाइप से आपको ये मैसेज रिसीव होगा। अगर आपने डायरी करते हुए कोई मैंडेटरी फील्ड को अनफिल छोड़ दिया है तो अलर्ट मैसेज यू हैव टू रिसीव, तो वो अलर्ट मैसेज आपके पास आएगा, वो आपको बताएगा कि आपने कहाँ पर क्या मिस्टेक किया हुआ है। ओके, तो ये हमने जनरेट किया था। जनरेट करने के बाद हमारा जो रिसिप्ट है वो क्रेडिट में जाके सेव हो जाता है। तो यू विल क्लिक ऑन द क्रेडिट कॉलम, this one. Okay, E for electronic, this is the computer number, this is the receipt number, this is the subject main category, sender, date on time. Okay, now next is close option. ठीक है, as previous version
क्लोज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द क्रिएटेड फोल्डर ऑफ द रिसिप्ट। ओके, बहुत जगह से रिक्वायरमेंट आती थी कि जब हम किसी रिसिप्ट को सपोज कि हमने रॉन्गली क्रिएट कर लिया है किसी रिसिप्ट को, तो हम उसको डिलीट और क्लोज नहीं कर पाते थे बिकॉज क्लोज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द क्रिएटेड फोल्डर। नाउ यू हैव टू क्लोज द रिसिप्ट फ्रॉम द क्रिएटेड फोल्डर बिकॉज क्लोज ऑप्शन इज अवेलेबल। ओके, तो आप यहाँ से इजिली रिसिप्ट को क्लोज कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको क्रिएटेड वाले फोल्डर में भी मिलेगा। ओके, नाउ अब हम इस रिसिप्ट को सेंड करेंगे। क्लिक ऑन द सेंड बटन। All, preferred list, resend 10, in channel, subordinate, send back, reporting officer। ठीक है, तो all options are here। Now जिसको भी आप भेजना चाहते हैं तो you can write on the two column name also। आप यहाँ पे नेम टाइप करेंगे। सीसी अगर आप किसी को करना चाहते हैं तो सीसी भी कर सकते हैं। ओके, अगर आप किसी को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। यू विल क्लिक ऑन दी क्रॉस साइन, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज रिमार्क। अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ रिमार्क देना चाहते हैं तो यू कैन राइट ऑन द रिमार्क कॉलन ऑल्सो। देन यू कैन सेट द सेट ड्यू डेट। यू विल क्लिक ऑन द सेट ड्यू डेट कॉलन, आप सेट ड्यू डेट लगा के भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्शन, like call for meeting, give time, please call for discussion, so you can set the action also colon। next is priority, आप priority भी fix कर सकते हैं, like this receipt is immediate action for most immediate out today and urgent। all options are here। okay, now next option is notify through email and SMS। अगर आपके इंस्टांस पे CIL में ईमेल और SMS की सर्विस अवेलेबल है, मींस ईमेल गेटवे और SMS गेटवे की सर्विस आपके यहाँ पर अवेलेबल है, तो यू कैन यूज नोटिफाई थ्रू ईमेल एंड SMS ऑल्सो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सपोज आप SMS पे क्लिक करके फाइल इस रिसीप्ट को सेंड करते हैं, तो जिसको आप रिसीप्ट सेंड कर रहे हैं उनके मोबाइल पे एक SMS नोटिफिकेशन जाएगा कि वन डॉक्यूमेंट उनको ई ऑफिस की साइट से रिसीव हुआ है। ठीक है, अगर आप ईमेल टिक करके भेजते हैं तो इनके ईमेल पे एक ईमेल जाएगी। ओके, तो बोथ ऑप्शंस इज वर्किंग। अगर आपके इंस्टांस पे इन दोनों ऑप्शंस की सर्विस अवेलेबल है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। Now next option is e-sign and send, DSC sign and send, and normal send। Three options are here। What is the difference between e-sign and DSC send? E-sign means electronically sign, it is Aadhaar based signature। Okay, तो अगर आपके यहाँ पर e-sign service is available तो you will click on the e-sign and send। First of all you will enter the last 3 digit of Aadhaar number। Okay, आप अपने आधार की लास्ट की 3 डिजिट एंटर करेंगे। then get the OTP in your mobile number, enter the OTP, then signing। तो जो आपकी रिसिप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली साइन होके जाएगी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज DSC साइन एंड सेंड, मींस डिजिटली साइन सर्टिफिकेट। ये पेन ड्राइव की तरह होता है। ठीक है, जब आप अपने सिस्टम में इसको प्लग इन करेंगे देन क्लिक ऑन दी DSC साइन एंड सेंड, तो यू विल एंटर द DSC पासवर्ड देन साइनिंग, तो आपकी जो रिसिप्ट है वो डिजिटली साइन होके जा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज नॉर्मल सेंड, तो यू विल क्लिक ऑन दी सेंड बटन, तो विदाउट सिग्नेचर आप इसको सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन ऑप्शंस में ये डिफरेंस रहेगा। ओके, नाउ क्लिक ऑन दी सेंड बटन। सक्सेसफुली सेंड, ये आपकी रिसिप्ट सेंड हो गई है, तो यू विल चेक इन योर सेंड फोल्डर ऑफ द रिसिप्ट मॉड्यूल। क्लिक ऑन दी सेंड फोल्डर, दिस वन 15139 15139 15139। तीन रिसीट्स का कंप्यूटर नंबर सेम है बिकॉज दिस इज द 2 कॉपी एंड ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2। जैसे ये 15135 ब्रैकेट में 1 है, दिस इज द CC कॉपी, दिस इज द सेकंड CC कॉपी, तो इस टाइप से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पुल बैक ऑप्शन। दिस इज द पुल बैक। अगर आपने रॉन्गली किसी को मार्क कर दिया है, उन्होंने अभी रिसीव नहीं किया, उस केस में यू विल क्लिक ऑन द पुल बैक कॉलन, तो ये फिर से आपके क्रिएटेड वाले फोल्डर में आके सेव हो जाएगी। इन फ्यूचर आप इसको कभी भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पुल बैक का ऑप्शन आपके पास रहेगा। नाउ नेक्स्ट चेंज इज कॉपी बटन। ठीक है, जैसे कभी क्या होता था कि प्रीवियस वाले वर्जन में जो हमने रिसिप्ट को डायरी करके हम सेंड कर देते थे, उनकी हम कॉपी नहीं कर पाते थे। ठीक है, क्योंकि कॉपी बटन हमारे पास सेंड फोल्डर में अवेलेबल नहीं था। बट नाउ इन न्यू वर्जन कॉपी बटन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द सेंड फोल्डर ऑफ द रिसिप्ट। सपोज कि हमने इस रिसिप्ट को सेंड कर दिया है बट हम इसका मेटा डेटा पूरा कॉपी करना चाहते हैं, केवल डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट डिफरेंट है, बाकी पूरी डिटेल्स हमारी सेम है। उस केस में हम क्या करेंगे, नाउ क्लिक ऑन दी चेकबॉक्स, क्लिक ऑन दी कॉपी बटन, तो ये पूरा मेटा डेटा हमारा सेव हो गया है। बस हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया, देन चेंज दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज किया, देन जनरेट, हम फिर से इसको जनरेट कर
सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉपी बटन। ओके, तो ये ऑप्शंस थे हमारे पास। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वो सारे सेम है, लाइक ब्राउज एंड डायरेक्ट, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक। दिस इज द इनबॉक्स ऑफ द रिसिप्ट, क्रिएटेड फोल्डर, सेंड फोल्डर, क्लोज। ओके, नाउ टॉप ऑफ द मेन्यू लाइक मूवमेंट ऑप्शन, क्लिक ऑन द मूवमेंट बटन, तो आप इसकी मूवमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। कॉपी बटन अभी मैंने आपको बताया, सेंड बैक सेम रहेगा। ठीक है, अटैच मीन्स कि अगर इस रिसिप्ट के साथ कोई अनदर रिसिप्ट you have to attach, तो you will click on the attach receipt, then click on the attach receipt। आप यहाँ से रिसिप्ट को अटैच भी कर सकते हैं। ओके, वन अनदर रिसिप्ट को। ओके, देन यू विल चेक दिस इज द अटैचमेंट सिंबल, नाउ क्लिक ऑन द अटैचमेंट, तो इस रिसिप्ट के साथ ये सारी रिसिप्ट आपकी अटैच्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लोज ऑप्शन। अगर आप इस रिसिप्ट को क्लोज करना चाहते हैं तो नाउ यू विल क्लिक ऑन द क्लोज बटन, देन एंटर द क्लोजिंग रिमार्क, देन क्लोज ऑफ द रिसिप्ट। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। नाउ दिस इज द एडवांस सर्च ऑफ द रिसिप्ट। ये एडवांस सर्च है आपकी रिसिप्ट का, क्लिक ऑन द एडवांस सर्च। ओके, दिस इज द बेसिक पैरामीटर्स लाइक कंप्यूटर नंबर, रिसिप्ट नंबर, सब्जेक्ट, ऑर्गन, ये दिस इज द बेसिक पैरामीटर्स। नाउ क्लिक ऑन द प्लस साइन, दिस इज द एडवांस पैरामीटर्स। तो आपको केवल एक फील्ड पता होना चाहिए, तो आप अपने रिसिप्ट को इजीली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये सेंड डिटेल्स, कंप्यूटर नंबर, रिसीव नंबर, लोकेशन, सेंडर, करंटली विद किसके पास है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द फिल्टर ऑप्शन, क्लिक ऑन दी फिल्टर, तो फिल्टराइज करके आप अपने इनबॉक्स को व्यू एंड रीड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फिजिकल रिसीप्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिसीप्ट्स, प्रायोरिटी वाइज आप इसको देखना चाह रहे हैं अपने इनबॉक्स को, लाइक इमीडिएट रिसीप्ट्स ही आप केवल यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, तो इमीडिएट आपकी कोई नहीं है। उसके बाद आप सेट ड्यू डेट, लाइक आपने कहाँ से कहाँ तक की डेट के अकॉर्डिंग आप अपने इनबॉक्स को व्यू करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल सर्च मींस इनबॉक्स सर्च, ये आपका इनबॉक्स का सर्च है, आप यहाँ से इनबॉक्स की रिसिप्ट को भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है आपका टोटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो मींस की टोटल रिकॉर्ड्स आपके कितने टोटल रिकॉर्ड्स हैं आपके इनबॉक्स में, ये यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10, 20, 50 आप यहाँ पर पेज सेट भी रेंज सेट कर सकते हैं कि इस एक पेज पे आप कितने रिसिप्ट्स या कितने फाइल्स को देखना चाहते हैं, तो आप और न्यू कलेक्शन नहीं बन सकता 70 मैक्सिमम है। हेलो हेलो मैडम प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, ठीक है, इसके बाद आता है कि ये इनबॉक्स है आपकी रिसिप्ट का। ठीक है, तो इनबॉक्स में वो रिसिप्ट आएंगी जो आपको किसी ने सेंड की हैं। ठीक है, तो जिन्होंने सेंड की है उनकी आप डिटेल्स चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप डिटेल्स कैसे पता करेंगे, सेंड बाय, तो क्लिक ऑन द लेफ्ट साइड, आप इसके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, जिसने आपको इस रिसिप्ट को सेंड किया है, उनका नेम, डेजिग्नेशन, पोस्ट, डिपार्टमेंट, ईमेल आईडी, सेक्शन, मार्क, एब्रीविएशन, तो आप यहाँ से उनकी पूरी डिटेल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन ये जो रेड कलर के आइकन्स आ रहे हैं, दिस इज अ लीजेंड। ठीक है, दिस इज द अटैचमेंट सिंबल, आपने इस रिसिप्ट के साथ क्या क्या अटैच हो रखा है वो देख सकते हैं। नाउ दिस इज द रिसिप्ट विद पीडीएफ। ठीक है, दिस इज द सब्जेक्ट मेन कैटेगरी आइकन, दिस इज द सब्जेक्ट मेन कैटेगरी लाइक फाइनेंस, बजट, कैश रिलेटेड है ये डॉक्यूमेंट। तो आपके पास जो भी रेड आइकन है आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं, वो खुद से जब आप कर्सर लेके जाएंगे, व्हाट इज इट, लाइक इट्स द अटैचमेंट सिंबल, दिस इज द बजट, कैश, अकाउंट, मेन कैटेगरी ऑप्शन, दिस इज द एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी ऑप्शंस। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पर। एक यहाँ पे देखिए टोगल हेडर का है, देन दिस इज द ई फाइल वर्जन, आपका ई फाइल का वर्जन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। अगर आप इस स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं तो यू विल क्लिक ऑन द टोगल हेडर, तो ये आप स्पेस भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, देन दिस इज द स्विच इनबॉक्स व्यू ऑप्शन, अगर आप अपने इनबॉक्स का व्यू चेंज करना चाह रहे हैं लाइक कॉलम वाइज एंड रो वाइज, नाउ यू विल क्लिक ऑन द स्विच इनबॉक्स व्यू, दिस इज द कॉलम वाइज, दिस इज द रो वाइज। ओके, तो ये आपका पूरा रिसिप्ट मॉड्यूल था, मींस की डायराइजेशन वाला पार्ट था। अगर इससे रिलेटेड एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो यू कैन आस्क।
फिर हम फाइल स्टार्ट करते हैं कि फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सर आपकी एनी डाउट कोई क्वेरी है रिसीप्ट से रिलेटेड, एनी डाउट एनी क्वेरी? नो मैडम। ओके ओके सर, ठीक है, मैं फिर फाइल स्टार्ट करती हूँ। यस प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके ओके। Hello. This is the file module. Okay, first option is create new. For creating a new file in eOffice, you will click on the create new option. This is the cover of the file. Okay, nature is electronic and physical. Type is non-SFS and SFS. SFS stands for single file system. Okay, first option is file number. File number and description means subject of the file is a mandatory field. First is basic head. Basic head is your department name, then primary head, then secondary head. Okay, then enter the description. Okay. Now next option is other details, previous references, letter references, language, review date, all fields are here. ठीक है, आप इनको फिल भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज ऑल फील्ड्स आर ऑप्शनल, टू फील्ड्स आर मैंडेटरी. फर्स्ट इज फाइल नंबर, सेकंड इज description. Okay, next is continue working. Now click on the continue working. Confirmation message you will receive. File number will be generated, number generated will be final, can't be added. ठीक है, do you wish to proceed? Click on the proceed button. File is open. Left hand side is a noting part and right hand side is a detailing part. Sorry, correspondence part. ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फाइल क्रिएट करते हैं तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइल, नेचर इज इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज द कंप्यूटर नंबर एंड दिस इज द फाइल नंबर. ये आपका फाइल नंबर है, ठीक है. देन दिस इज द सब्जेक्ट, DSCRR, ये आपका फाइल का सब्जेक्ट रहेगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अटैच द रिसिप्ट इन द राइट हैंड साइड एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस. ओके, तो यू विल क्लिक ऑन द एड रिसिप्ट. ठीक है, तो ये आपकी रिसिप्ट रहेंगी. एज प्रीवियस वर्जन आप क्या करते थे, 1 by 1 करके रिसिप्ट को अटैच करते थे, बट नाउ इन न्यू वर्जन यू विल अटैच द मल्टीपल रिसिप्ट्स एट ए टाइम. Okay, so you will click on the multiple receipts, then enter the remark because remark is a mandatory field, then okay, then attach. तो successfully enclosed, ये आपकी यहाँ पर enclosed हो गई है, सेव हो गई है. Okay. Now left hand side is a noting part. First option is green note, second is yellow note. What is the difference between green note and yellow note? Green note is a final note, can't be editable, can't be deleted. ओके, येलो नोट जस्ट लाइक ए ड्राफ्ट नोट, जस्ट लाइक ए रफ नोट. अगर आप कभी अपनी नोटिंग में कंफर्म नहीं है, उस केस में यू विल राइट ऑन दी नोटिंग इन येलो नोट, देन सेंड टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर. तो जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं उसमें करेक्शन करेंगे, देन बैक टू यू. ठीक है, उसके बाद आप येलो नोट को इजीली कन्वर्ट कर देंगे ग्रीन नोट में. ठीक है,
ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रीन नोट में ही नोटिंग करके अपनी रिपोर्टिंग ऑफिसर को मार्क कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग ऑफिसर भी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ओके, बट नाउ वन मोर ड्रॉबैक ऑफ दी येलो नोट। सपोज कि आपने येलो नोट में बना के किसी को फॉरवर्ड कर दिया और उन्होंने अपने ही लेबल पे उसको ग्रीन नोट में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपका रिकॉर्ड उसमें हट जाएगा, इनिशिएटर वही हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका इंटरनल डिस्कशन रहेगा या इंटरनल आपका वो रहेगा कि आप कौन सा नोट यूज करके अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को मार्क कर रहे हैं। Okay, now click on the add green note. ओके, तो इस तरीके से आप अपना नोटिंग करेंगे और जो आपका नोटिंग है वो ऑटो सेव होता रहेगा। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप चेंजेस करेंगे वो रेड कलर का आइकन दिखाएगा, देन सेव एज वो ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज 3 लाइंस बार मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, टीओसी मीन्स टेबल ऑफ कंटेंट, ये आप टेबल ऑफ कंटेंट है। सेकेंड इज रिसेंट मीन्स रिसेंटली कौन सी रिसिप्ट इसके अंदर अटैच हुई है, तो यू कैन सी, यू कैन व्यू, क्लिक ऑन द रिसिप्ट ऑप्शन, रिसेंट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑल, अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑल रिसिप्ट्स आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट इज प्रीवियस नोट्स। प्रीवियस नोट्स मीन्स कि इस फाइल का अगर आप प्रीवियस नोट्स देखना चाहते हैं तो यू विल क्लिक ऑन द प्रीवियस नोट्स ऑप्शन। माइग्रेटेड नोट्स, जो भी आपकी फिजिकल फाइल्स होती हैं जो माइग्रेट होकर नोट्स आते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर वो इस फाइल के साथ अटैच्ड हैं। ये देखिए, वो दूसरे वाले लिंक में कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राफ्ट लिस्ट, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट एंड रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं फाइल के साथ कितने ड्राफ्ट अटैच्ड हैं, कितने डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। रेफरेंसेस मींस लोकल रेफरेंस, अगर आप डायरी नहीं करना चाहते किसी डॉक्यूमेंट का, वो फाइल का ही एक पार्ट है, उस केस में यू विल यूज लोकल रेफरेंस ऑप्शन। मींस कि आप यहाँ पर इजीली डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं विदाउट डायराइजेशन। ओके, ओके, ठीक। उसके बाद हमारा एक ऑप्शन है यहाँ पर देखिए अटैचमेंट का। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पीडीएफ है, कोई ऑडिटी है, ओके, ओके, तो इसमें अटैचमेंट का ऑप्शन है आपके पास। अटैचमेंट में लाइक अगर आपके पास कोई पीडीएफ है, कोई ऑडिटी फाइल है, ठीक है, कोई पीपीटी है जो आपका इस फाइल से ही रिलेटेड है, ठीक है, तो आप इजीली उसमें अटैच कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज रेफरेंस मींस फ्लैगिंग, हाईलाइट, जैसे आप हाईलाइट करते हैं वैसे आप कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक अनदर फाइल यहाँ पर अटैच करके दिखा देती हूँ। ओके, इसमें मैं अनदर फाइल अटैच करके दिखा देती हूँ आपको एक बार। ले लें,
यहाँ पे देखिए आप, ये जैसे हमारे यहाँ पर प्रीवियस नोट्स हमारा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, और ये आप अगर नया नोट बनाना चाहते हैं तो नया नोट आपने यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक। अब राइट हैंड साइड में देखिए, दिस इज अ टेबल ऑफ कंटेंट, नाउ क्लिक ऑन द स्विच व्यू ऑप्शन। तो ये हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ऑल करके, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जो हमारी रेफरेंसिंग है वो हम 3 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट इज नोटिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस, सेकंड इज नोटिंग टू नोटिंग एंड पैराग्राफ नोटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन नोटिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस रेफरेंसिंग। तो नोटिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस रेफरेंसिंग करने के लिए हमने सपोज यहाँ पे रेफर किया, हमारे पेजेस हैं 1 of 64, तो सपोज हम 50 पेज के साथ रेफर करना चाहते हैं, तो रेफर पेज नंबर 50, okay, select all the content and click on the referencing button, okay, then select the page number 50, okay, then okay, सक्सेसफुली रेफर्ड। तो पहले क्या होता था कि आप प्रीव्यू का एक ऑप्शन होता था, यहाँ पर आई का सिंबल होता था, आप उस पर क्लिक करके देखते थे कि रेफरेंसिंग इज करेक्ट और नॉट, बट जो आई का प्रीव्यू सिंबल इज रिमूव्ड, हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया है। नाउ यू विल क्लिक ऑन दिस हाइपरलिंक, दिस कंटेंट जो है वो हाइपरलिंक में आपका कन्वर्ट हो गया है, तो यू विल क्लिक ऑन दिस हाइपरलिंक। तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे देखिए रेफर्ड पेज इन दिस पीडीएफ 11 इन ऑल टीओसी पीडीएफ 50, ये 50 वाला पेज आपका यहाँ पर ओपन हो गया है। दिस इज कॉल्ड नोटिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस रेफरेंसिंग। आप इस तरीके से नोटिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस रेफरेंसिंग कर सकते हैं, ओके। नाउ सेकंड इज नोटिंग टू नोटिंग। नोटिंग टू नोटिंग रेफरेंसिंग करने के लिए आपको राइट हैंड साइड में प्रीवियस नोट अपना ओपन करना पड़ेगा। नाउ क्लिक ऑन दिस आइकन, देन क्लिक ऑन द प्रीवियस नोट्स, ओके। तो आप प्रीवियस नोट्स यहाँ पर ओपन करेंगे। प्रीवियस नोट आपने यहाँ पर ओपन कर लिया है। प्रीवियस नोट में आपकी 5 नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप अपना नोट नंबर 6 प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नोट नंबर 6 इज रेफर टू द नोट नंबर 2, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा रेफर नोट नंबर 2, select all the content and click on the referencing button and select the note number 2, then okay, successfully referred. Now click on this hyperlink, the note number 2 is open. This is called noting to noting referencing, okay. Now next is noting to paragraph noting. Suppose कि नोट नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 7 पैराग्राफ्स बने हुए हैं और आप नोट नंबर 1 के सेकंड वाले पैराग्राफ को रेफर करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। रेफर नोट नंबर 1 पैरा para 2, okay, then select all the content and click on the referencing button. नोट नंबर 1 पैरा आप सेकंड के साथ रेफर कर रहे हैं, तो नोट नंबर 1 जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑल पैरा लिस्ट इज हेयर। नाउ सेलेक्ट द पैरा नंबर 2, देन ओके, तो सक्सेसफुली रेफर्ड। नाउ यू विल क्लिक ऑन दिस हाइपरलिंक। तो नोट नंबर 1 एंड सेकंड पैरा बैकग्राउंड कलर इज डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड नोटिंग टू पैराग्राफ नोटिंग, ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो है ये आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नोटिंग टू पैराग्राफ नोटिंग। तो आप यहाँ पर ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स आप यहाँ पे रेफरेंसिंग कर सकते हैं, नोटिंग टू नोटिंग, नोटिंग टू पैराग्राफ नोटिंग एंड नोटिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस, ओके। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास। नाउ नेक्स्ट इज एक छोटा सा यहाँ पर आइकन अटैच हुआ है, स्विच व्यू, ठीक है। स्विच व्यू की हेल्प से आप मल्टीपल विंडोज भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, लाइक दिस इज द प्रीवियस नोट, दिस इज द न्यू फ्रेश नोट एंड दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। और ये अगर आप यहाँ पर ओपन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना ड्राफ्ट भी ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच व्यू ऑप्शन। तो यू हैव टू ओपन द मल्टीपल विंडोज एट ए टाइम, ओके। ये हमारा फीचर यहाँ पे क्यों दिया गया, सपोज कि आप अपना न्यू फ्रेश नोट बना रहे हैं, तो न्यू फ्रेश नोट बनाते हुए आपको अपने प्रीवियस नोट्स की भी नीड है, ड्राफ्ट की भी नीड है, कॉरेस्पॉन्डेंस की भी नीड है। तो उस केस में यू विल क्लिक ऑन द स्विच व्यू ऑप्शन, तो यू हैव टू ओपन द एट ए टाइम फॉर मल्टीपल विंडोज, ओके। तो आप का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज फिल्टर ऑप्शन, शॉर्ट एंड फिल्टर। क्लिक ऑन शॉर्ट एंड फिल्टर, शॉर्ट बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड फिल्टर बाय पोस्ट,
ठीक है। सपोज कि आपकी नोटिंग में बहुत सारे यूजर्स ने नोटिंग किया है, 100 या 500 के समथिंग नोटिंग्स आपकी हो गई हैं, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर किसी यूजर की नोटिंग व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या आप अपना जो नया नोट बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर की नोटिंग से वो नोट रिलेटेड है, तो उस केस में यू कैन व्यू एंड यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ फिल्टर ऑप्शन। तो आप इसकी हेल्प से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लाइक आप अर्जुन सिंह जादौन की ही नोटिंग चेक करना चाहते हैं, तो यू विल क्लिक ऑन द अर्जुन सिंह जादौन, तो केवल उन्हीं की नोटिंग आपको यहाँ पर विजिबल रहेगी। ओके, तो आप फिल्टर की हेल्प से यहाँ पर शॉर्ट फिल्टर बाय पोस्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसलेट। यहाँ पर आपको एक ट्रांसलेट का ऑप्शन भी दिया गया है। ट्रांसलेट का ऑप्शन क्यों दिया गया है? सपोज कि आप अपनी नोटिंग हिंदी में बना रहे हैं, लेकिन आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भेजना चाहते हैं, या आप इंग्लिश में बना रहे हैं और आप ट्रांसलेट करके हिंदी में भेजना चाहते हैं, सेंड टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर, सेंड टू द सबऑर्डिनेट, तो उस केस में यू विल यूज ट्रांसलेट ऑप्शन। ये डीओएल का एक पार्ट है, यहाँ पर डीओएल का एक ऑप्शन दिया गया है आपको, ठीक है। सेलेक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम एडिटर टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। कंटेस्ट यूटिलिटी है ये फ्रॉम ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सीडेक की, तो आप इसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? एनी डाउट, एनी क्वेरी? Excuse me, मैम। हाँ जी सर। मैम एक क्वेरी थी मैम, फिजिकल फाइल और इलेक्ट्रॉनिक फाइल में मैम नॉर्मली डिफरेंस क्या है मैम? अभी काफी लोगों का क्वेरी भी आता है। हाँ सर, फिजिकल फाइल्स में क्या होता है कि जैसा आपका केवल वो फिजिकल फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए यूज होती है, ठीक है। उसमें नोटिंग कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऑफिस के अंदर केवल वो फाइल ट्रैकिंग के लिए यूज हो रहा है, मतलब एक नंबर ट्रैक कर रहे हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक में आप एक नंबर जनरेट कर रहे हैं, उसमें आप नोटिंग कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस अटैच कर रहे हैं, देन उसको डिजिटली साइन करके मूव करा रहे हैं। अभी तो शायद फिजिकल फाइल्स यूज नहीं होती होंगी आपके पर। मैम एक्चुअली दोनों ऑप्शन है, तो कई लोग फिजिकल फाइल यूज कर लेते हैं ऑप्शन, बट कई लोग पूछते भी हैं कि ये दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, इसमें नोटिंग करें तो क्या इम्पोर्टेंस है, ई से करें तो क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ, लेकिन सर अभी जैसे यहाँ पर है ना नेचर, इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल, तो ये जो फिजिकल ऑप्शन आप लोग यूज करेंगे ना, तो इसमें आप अपनी, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, एक जैसा आपने अपना ये बनाया, फाइल नंबर डाला आप यहाँ पर, देन कंटिन्यू वर्किंग, इस तरीके से रहेगा बस फिजिकल फाइल। उसमें नोटिंग कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा ही नहीं, केवल फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए यूज होगा ये नंबर। ओके। हाँ, उसमें नोटिंग पार्ट नहीं आएगा, आप केवल रिसीप्ट को अटैच करके इस मूव करा सकते हैं। हेलो मैडम। हाँ जी सर। ट्रांसलेट कैसे करना है एक बार बता दीजिए। कौन सा वाला सर ट्रांसलेट ऑप्शन? मतलब जो ये आपको नोटिंग साइड में नहीं हुआ है? हाँ सर, जैसे हाँ सर, जैसे आपने वर्ड में अपने नोटिंग बना के रखी हुई है ना, ठीक है, और आपने वर्ड से नोटिंग उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दी है, ठीक है, यहाँ पर अपने जब आप नोटिंग कर रहे हैं, ठीक, उसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ट्रांसलेट। तो जैसे ही आप ट्रांसलेट करेंगे ना, बिकॉज ये डेमो साइट है ना, तो भी ट्रांसलेट ऑप्शन इज नॉट वर्किंग, ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, तो एक विंडो आपका लेफ्ट हैंड साइड में ओपन होगा, एक राइट हैंड साइड में ओपन होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका हिंदी वाला कंटेंट रहेगा, देन उसको कन्वर्ट होके राइट हैंड साइड में वो आपका इंग्लिश वाला कंटेंट दिखाएगा। तो जब आप उसको सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश वाला कंटेंट आ जाएगा, दैट मीन्स कि वो आपका डेटा पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा, फिर आप फाइल को सेंड कर सकते हैं। तो सेंट वाला को हिंदी एंड इंग्लिश बोथ दिखेगा या ओनली जो ट्रांसलेट किया वही दिखेगा? हाँ, जो ट्रांसलेट करेंगे आप वही दिखेगा। ओके। हाँ जी सर। हेलो।
हेलो मैडम। और कोई डाउट है सर? मैम सुनाई दे? नो मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके। हेलो हेलो हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, यस मैम। मैडम, जो नोटिंग आई है हम उसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या? जैसे इंग्लिश में आई है तो हम हिंदी में कर सकते हैं, या हिंदी में आई है इंग्लिश में कर सकते हैं? नहीं नहीं मैम, ये तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ तभी आएगा सेंड जब आप करने खुद का। से। यस मैम, यस मैम। ओके क्योंकि यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस नोट है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है ना यहाँ पर। यहाँ ओके पर ये ओके ओके। प्रीवियस नोट है आपका। हाँ, तो मतलब बस आप उसमें बना अपना के कोई भेज। नया ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है कि हम लोगों के पास कोई नोट आता है तो हम उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है इसमें? नहीं 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 नहीं, ये ओके ठीक बेसिकली है, यहाँ थैंक पर यू। ऑप्शन। हाँ, ये ऑप्शन बेसिकली इसलिए दिया है कि सपोज कुछ लोग नोटिंग इंग्लिश में करके हिंदी में ट्रांसलेट करके भेजना चाहते थे, तो वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट नहीं हो पाता था ना, अगर आप कोई लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम का तो। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। मैम सुनाई दे रहा है मैम? हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। जी। मैम ये जो मल्टीपल विंडोज खुलते हैं, क्या इसमें दूसरी फाइल खोली जा सकती है क्या, कि सेम फाइल के ही नहीं, हमें? एक ही फाइल का ओपन होगा सर, एक ही फाइल का डेटा आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अटैचमेंट की क्या लिमिट है साइज की? सर इस वाले अटैचमेंट की तो कोई लिमिट नहीं है अभी, इसमें कोई लिमिट बाउंडेशन हमने नहीं दिया है यहाँ पर। तो ये पीडीएफ आप अटैच करेंगे, पीडीएफ और डीटी फाइल, बस अभी लिमिट सर वही है। जब आप डायरी करते हैं, डायरी करते टाइम जो डॉक्यूमेंट है वो 20 MB होना चाहिए। बाकी इस वाले में भी कोई लिमिट नहीं है। और जो आप लोकल रेफरेंस में यहाँ पर ये अटैचमेंट करेंगे लोकल रेफरेंस में, तो इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। बस इसमें दो चीजें और ऐड हुई हैं, जो आपकी जिप फाइल होती थी और रार फाइल होती थी, वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा, पहले ये वाला रेफरेंसेस ऑप्शन नहीं चाहिए। था। हाँ हाँ, लोकल रेफरेंस जी। में आप डाल सकते हैं उसको, ओके। जार फाइल और जिप फाइल दोनों। एक और था कि नेम में अगर फाइल के डॉट लगा रहता था तो हाँ, वो वो भी नहीं एरर होता? आती थी। हाँ, वो अटैच नहीं होती थी, लेकिन वो इस वाले वर्जन में आपके यहाँ पर नहीं आएगी। वो ले लेगा डॉट और कॉमा, अगर है फाइल के अंदर तो वो ले लेगा सर इस बारे में ना। जी जी, ठीक, ओके। ठीक है, ठीक है सर। ओके, इसमें ये सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद एक चीज और आती है यहाँ पर, देखिए फाइनल अप्लाई, जो आपका ड्राफ्ट बनाते हैं ना, जैसे आपके फाइल के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस अटैच है, उसके अगेंस्ट में आप फाइनल अप्लाई बना रहे हैं, मतलब ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो वो आप कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिएट न्यू ड्राफ्ट, आप इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बना के रखा हुआ है, मतलब वर्ड में बना के रखा हुआ है, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से यहाँ पर भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वर्ड रिलेटेड फाइल है, तो आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। तो आप 3 टाइप से यहाँ पर ड्राफ्ट अपना बना सकते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन है कि हाँ जी। पहले ये जो ड्राफ्ट में एक्सेल शीट से जो इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे पेस्ट करते थे, तो उसकी जो उसकी फॉन्ट और उसकी स्पेसिंग ये सारी कुछ चेंज हो जाती थी। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव अ डेमो कि एक्सेल से या वर्ड में जो टेबल है उसको यहाँ पेस्ट करने से इफ इट इज चेंजिंग और नॉट, प्लीज। हाँ सर, वो मैं आपको भी करके दिखा देती हूँ, बट मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि जैसे आप अभी ये वाला नया वाला वर्जन सर यूज करेंगे ना, तो इसमें जो इश्यूज आते थे लाइक टेबल से रिलेटेड, कि आप वर्ड में कोई टेबल बनाते थे, उसके अंदर डेटा डालते थे और आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते थे, तो वो आधा डेटा का फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता था। जब आप ड्राफ्ट सेंड कर रहे हैं तो वो डाउनलोड करते थे तो पूरी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती थी। बट इसमें अभी ऐसा नहीं होगा जब आप ये वाला वर्जन यूज करेंगे। ठीक है, मैं ट्राई कर लेती हूँ। एक्चुअली ये डेमो साइट है, तो इसमें सारे फीचर्स अभी अवेलेबल नहीं है और इसमें चेंजेस नहीं हो पाते हैं। मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ, अगर कोई जस्ट पीडीएफ। हाँ ओके।
हेलो। हाँ सर, मैंने एक्सेल से ये देखिए यहाँ पर एक्सेल थी, ये इससे डेटा उठाया है अपना और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है। Looks fine, ma'am. Thank you. Yes. Okay. Then right hand side is the draft details. Like first option is draft nature, new, fresh, and reply. So you will click on the reply and received. Then receipt number. Okay. Then you will click on the save button. Save button से पहले यहाँ पे भी एक अटैचमेंट का ऑप्शन है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई पीडीएफ, कोई ऑडिटी, पीपीटी फाइल है आपके पास जो आप अपलोड करना चाहते हैं, तो यू विल upload the document in the draft side. Then you will click on the save button. हेलो हाँ जी सर, हेलो। मैम, अभी इज इट पॉसिबल कि अगर कोई ड्राफ्ट हम सेव करते हैं तो वो रिमूव कर ले बाद में? अभी प्रॉब्लम क्या आती है, समटाइम हम कोई नोट लिखना स्टार्ट करते हैं और आफ्टर सम टाइम हम रियलाइज करते हैं कि नहीं, ये नोट नहीं हमें भेजना है, हम फाइल क्लोज कर देते हैं, वो नोट डिस्कार्ड नहीं होता है, हम दोबारा फाइल ओपन करते हैं तो वही सेम प्रीवियस नोट लिख के ही आएगा वो कंपल्सरी एकदम। तो इज इट पॉसिबल कि इस वाले वर्जन में वो हट जाए या मतलब हम उसको डिस्कार्ड कर पाए अगर हमने सेंड नहीं किया तो? हाँ, लेकिन जैसे आपने अपना ग्रीन नोट आप बना रहे हैं, ग्रीन नोट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जैसे आपने ग्रीन नोट बनाया अभी और ग्रीन नोट बना के आपने किसी को सेंड कर दिया है वो फाइल, ठीक है, और फिर वो नहीं मैम, सेंड नहीं किया है, बस बना रहे थे और आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज मतलब ये नोट नहीं भेजना है, तो वो जो नोट है वो डिस्कार्ड नहीं होता था। नहीं, हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली जो मैंने अभी ये फाइल बनाई थी ना, मैंने ये 3 नोट्स लिखे थे, ठीक है, मैंने अभी किसी को भेजी नहीं, मेरे पास है फाइल, तो मैंने यहाँ पे डिस्कार्ड किया, देन ओके, ये रिमूव हो गया है। फिर से ऐड ग्रीन नोट कर सकते हैं आप। ये डिस्कार्ड मैम फिफ्थ वर्जन, ओके मैम, अभी फिफ्थ वर्जन में मैम ये डिस्कार्ड नहीं होता तो बहुत इशू आता था, वो काफी देर तक। हाँ, 6th वर्जन में तो सर बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन इस वाले वर्जन में आपके सारे इश्यूज मोस्टली तो कवर अप हो गए हैं। हाँ जी सर, मैं ड्राफ्ट पे मैम एक सजेशन है कि अगर हम प्रेजेंट ये नोटिंग के साथ है तो अगर हम दूसरा भी नोटिंग मतलब दूसरे फाइल की नोटिंग अगर हम साइमल्टेनियसली देख पाए, दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर अस। यस सर, बट इस वाले बट इस वाले वर्जन में सर अभी नहीं है, मे बी नेक्स्ट वर्जन में भी आ जाए वो। ठीक है, तो हमने अपना ड्राफ्ट, ओके सर, ड्राफ्ट बनाया, उसके बाद हमने सेव कर दिया ड्राफ्ट को। ठीक है, सेव करने के बाद देखिए डीएफए, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल 1000069, ड्राफ्ट स्टेटस डीएफए है। ओके, तो जो भी आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी है, रिपोर्टिंग ऑफिसर है, जो भी आपका ड्राफ्ट अप्रूव्ड करते हैं, सेंड टू दी अप्रूविंग अथॉरिटी, तो आप ये वाली फाइल उनको सेंड कर देंगे। ठीक है, जैसे आप फाइल सेंड करेंगे वो इस ड्राफ्ट को चेक करेंगे, इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, अगर आप वो इसमें एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज क्लिक ऑन दी अप्रूव बटन। ओके, इससे पहले देखिए यहाँ पर भी ट्रांसलेट का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप ड्राफ्ट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, नोटिंग को भी कर सकते हैं, ड्राफ्ट को भी कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन दी अप्रूव बटन, अप्रूवल कंफर्मेशन मैसेज यू विल रिसीव, देन यस, draft has been approved. Okay, so after approval issue number has been generated, this is the issue number I/73812024। ठीक है, अभी जो आपका 6 वाला वर्जन है उसमें क्या होता था कि डिस्पैच होने के बाद इशू नंबर जनरेट होता था। ठीक है, बट आपके जो नया वाला वर्जन आप अभी ई ऑफिस का यूज करेंगे, इसमें आफ्टर अप्रूवल ही आपको इशू नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इशू नंबर मिल गया है, ड्राफ्ट स्टेटस अप्रूव्ड। ओके, वर्जन 1 ये ऑप्शंस हैं आपके पास। उसके बाद क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ड्राफ्ट का, ये सेम है प्रीवियस वर्जन, बट इसमें साइनिंग प्रोसेस आपका चेंज हुआ है। साइनिंग प्रोसेस कैसे चेंज हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन इज ई साइन, सेकंड इज डीएससी साइन, थर्ड इज इंक साइन। 3 ऑप्शंस आर हियर। तो ई साइन, डीएससी साइन आपको पता है कि आपको कैसे यूज करना है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इंक साइन। इंक साइन कैसे करेंगे आप? इंक साइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डाउनलोड दी अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट। ये जो आपका अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे।
डाउनलोड करने के बाद आप इसको प्रिंट निकालेंगे, देन उस पर फिजिकल सिग्नेचर करेंगे, देन यू विल स्कैन द पेपर, अप्रूव डॉक्यूमेंट, साइन पेपर, देन अपलोड द इंक साइन डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। ठीक है, इंक साइन डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड। उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी ड्राफ्ट स्टेट है वो ऑटोमेटिकली चेंज्ड फ्रॉम अप्रूव टू पेंडिंग इंक साइन कंफर्मेशन। मींस कि आपने अभी अपना इंक साइन जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड किया है बट उसको कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए यू विल क्लिक ऑन द कंफर्म एंड डिस्कार्ड इंक साइन। दिस इज द अप्रूव्ड कॉपी, ओके, दिस इज द साइंड कॉपी। ओके, तो approved copy is replaced to the signed copy because signed copy is a final copy. Then you will click on the confirm button. तो इंक साइन हैज बीन कंफर्म्ड, तो इंक साइन आपका यहाँ पर लग जाएगा और ड्राफ्ट स्टेट इज ऑटोमेटिकली चेंज फ्रॉम पेंडिंग इंक साइन कंफर्मेशन टू साइंड। ठीक है, यहाँ पर आपको ये साइन दिखा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अप्रूव्ड कॉपी। अगर आप अप्रूव्ड कॉपी देखना चाहते हैं तो क्लिक ऑन दी अप्रूव्ड कॉपी। आप यहाँ से अप्रूव्ड कॉपी भी अपनी देख सकते हैं। ठीक है, विद फाइल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज इनिशिएट डिस्पैच। ओके, इनिशिएट डिस्पैच करने के बाद सेंड एंड डिस्पैच विद फॉलोअप आता है, विदाउट फॉलोअप आता है। बट उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको रिसिपिएंट्स की डिटेल्स एंटर करनी होगी जिसको आप इस रिसिप्ट का रिप्लाई देना चाहते हैं। नाउ क्लिक ऑन द ऐड रिसिपिएंट्स। तो 3 ऑप्शंस आर हियर इन योर लाइव साइट। फर्स्ट ऑप्शन इज पब्लिक, सेकंड इज इंट्रा ई ऑफिस, थर्ड इज इंटर ई ऑफिस। ओके, तो 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। नाउ सेलेक्ट द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नेम। Okay, enter the name, address, then add. Okay, तो आप यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ये ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। नाउ आप पोस्टल के थ्रू भी भेज सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। बोथ ऑप्शंस आर हियर, पोस्टल एंड ईमेल। ओके, तो पोस्टल डिटेल्स आपको भेजने के लिए पोस्टल डिटेल्स एंटर करना होगा। यू विल क्लिक ऑन द पोस्टल मोड, आउट, डेट एंड टाइम, देन ओके। ओके, इसका भी आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी, देन डेट देंगे, देन सबमिट करेंगे। ओके ओके, देन ईमेल डिटेल्स आल्सो हियर। यहाँ पर आप ईमेल डालेंगे। मैंडेटरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट ईमेल आईडी यूज करेंगे, आप यहाँ पर जीमेल, याहू की मेल भी यूज कर सकते हैं। देन सब्जेक्ट देंगे उसका, ड्राफ्ट का आपका यहाँ पर पीडीएफ ये जनरेट हो रहा है, देन ईमेल मैसेज दे देंगे आप उनको। ओके, तो ये ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, पोस्टल एंड ईमेल। नाउ नेक्स्ट इज सेंड एंड डिस्पैच विद फॉलोअप, विदाउट फॉलोअप। अगर आप वहां से फॉलोअप नहीं चाहते हैं तो यू विल क्लिक ऑन दी विदाउट फॉलोअप। अगर आप फॉलोअप चाहते हैं कि आपके पास फॉलोअप आ जाए तो आप विद फॉलोअप भी लगा के भेज सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन द विदाउट। तो न्यू डिस्पैच हैज बीन क्रिएटेड, दिस इज द इशू नंबर, सब्जेक्ट, इशू डेट ऑन टाइम, करंटली विद किस फाइल के साथ अटैच्ड है, देन किस रिसीप्ट नंबर के अगेंस्ट में रिप्लाई है। तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। इनबॉक्स में जाएंगे आप, किस फाइल के साथ आपका ये अटैच्ड है, ओपन द फाइल, देन दिस इज द इशू नंबर। आप यहाँ पे ओपन करके भी इसको देख सकते हैं। This is the process of creating draft. Okay. ठीक है, इसमें लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास पार्ट फाइल। पार्ट फाइल आप कब बनाते हैं, जब आपकी मेन फाइल इज अंडर सबमिशन, उस केस में यू विल क्रिएट दी पार्ट फाइल। ठीक है, तो आप पार्ट फाइल बना सकते हैं। क्रिएट पार्ट इसका ऑप्शन है, क्रिएट पार्ट, चूज फ्रॉम, जो भी आपकी सेंट वाली फाइल्स हैं उनका पार्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट वाली फाइल्स का आप पार्ट बना सकते हैं।
नाउ दिस इज द इनबॉक्स ऑफ द फाइल। तो इनबॉक्स में भी आपको क्रिएट पार्ट का ऑप्शन दिया गया है। इनबॉक्स में आपको क्रिएट पार्ट का ऑप्शन क्यों दिया गया है? सपोज कि आपके पास ये फाइल है, एक फाइल है, ठीक है, और इस फाइल से रिलेटेड 2 डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट रिलेटेड है आपके सबऑर्डिनेट से और एक डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू योर रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो आप एट ए टाइम एक फाइल ही किसी एक को भेज सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स को फाइल आप नहीं भेज पाएंगे, तो आप देन आप इसके अगेंस्ट में एक क्रिएट पार्ट कर लेंगे, इसका एक पार्ट क्रिएट कर लेंगे। पार्ट क्रिएट करने के बाद आपकी सेम नंबर की 2 फाइल्स हो जाएंगी। तो 1 फाइल्स में आप डॉक्यूमेंट अटैच करके सेंड टू द सबऑर्डिनेट, और जो पार्ट फाइल है, पार्ट फाइल में डॉक्यूमेंट अटैच करके सेंड टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो आप पैरेलली वर्क कर सकते हैं, इससे आपका वर्क रुकेगा नहीं। और आपकी जब मेन फाइल और पार्ट फाइल दोनों आपके इनबॉक्स में आ जाएगी, तब आप उनको अटैच कर सकते हैं। अटैच आप कैसे करेंगे? नाउ ओपन द मेन फाइल, देन क्लिक ऑन द अटैच फाइल। इसके बाद क्लिक करेंगे, देन यू विल अटैच द पार्ट फाइल, देन अटैच, सक्सेसफुली अटैच्ड। तो वो आपके इनबॉक्स में भी आपको विजिबल रहेगी। दिस इज द अटैचमेंट सिंबल। नाउ आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल इस फाइल के साथ अटैच्ड है। Okay, then this is the filter option is also available in the inbox of the file, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन की हेल्प से, जैसे मैंने रिसिप्ट में बताया था, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इमीडिएट फाइल्स, मोस्ट इमीडिएट, अपने अकॉर्डिंग। ओके, ऑल ऑप्शंस यहाँ पर सारे सेम है जैसे आप अभी यूज करते हैं। क्लोजिंग प्रोसेस पूरा सेम रहेगा आपका, ठीक है। एडवांस सर्च रहेगा, दिस इज द बेसिक पैरामीटर्स एंड दिस इज द एडवांस पैरामीटर्स। ये एडवांस पैरामीटर्स रहेंगे आपके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डैशबोर्ड व्यू। दिस इज द व्यू ऑफ योर, ये आपका ई ऑफिस का अपना डैशबोर्ड रहेगा। इसमें दिस इज योर नेम, यहाँ पर नेम आएगा, यहाँ पर फाइल डिटेल्स आएंगी आपकी, यहाँ पर रिसीव डिटेल्स आएंगी, ठीक है। फाइल डिटेल्स मींस अनरीड टोटल रिसीप्ट्स कितनी है, फाइल कितनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यूजर एंड लॉगिन डिटेल्स, आपका नेम आएगा, आपकी डेजिग्नेशन आएगी, आपकी पोस्ट आएगी, ठीक है। लास्ट लॉगिन डेट एंड टाइम रहेगा आपका, विच आईपी एड्रेस रहेगा। ओके, देन करंट असाइन रोल्स रहेगा कि आपको कौन कौन से रोल्स असाइन है, वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन द रोल हिस्ट्री, आपको कौन से रोल कब असाइन हुए, कौन सी डेट को असाइन हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। देन राइट हैंड साइड में डिजिटल साइन एक्टिविटी, डिजिटल साइन ट्रांजैक्शन, लास्ट लॉगिन साइन ऑन विच आईपी एड्रेस, ई साइन ट्रांजैक्शन मींस लास्ट सक्सेसफुल साइन ऑन आईपी एड्रेस। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपकी अपनी है, आपका अपना डैशबोर्ड है ये, ठीक है। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे ये नॉर्मल सर्च है आपका इनबॉक्स का, तो आप नॉर्मल मतलब फाइल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। टोटल रिकॉर्ड्स आपका यहाँ पर दिखाई देगा। और बाकी ये जो आइकन्स हैं आपके, ये दिस इज द लीजेंड्स, ये आपके लीजेंड्स रहेंगे। लाइक आप इस पे क्लिक करेंगे या कर्सर लेके जाएंगे, दिस इज द प्रायोरिटी मींस मोस्ट इमीडिएट फाइल, दिस इज द प्रायोरिटीज इमीडिएट फाइल्स। देन ये जो आइकन है, दिस इज द लोकल रेफरेंस, ये आपका लोकल रेफरेंस है। एंड दिस इज द फाइल विद ड्राफ्ट। तो जो भी लीजेंड्स हैं वो पहले आपके वर्जन में इनबॉक्स के नीचे आपको अवेलेबल रहते थे, विजिबल रहते थे, लेकिन अब वो सारे लीजेंड्स हमने यहाँ से हटा दिए हैं। अब आपको यहाँ पर दिखेंगे जो भी आप कोई फाइल सेंड करेंगे या कोई फाइल आपके पास आएगी। ओके, ये है। इसके बाद दिस इज द नोटिफिकेशन आइकन, जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा पुल बैक के थ्रू, लाइक कोई पुल बैक हुई है आपकी फाइल, और या फिर ईमेल से रिलेटेड आ रहा है, या फिर आपकी कोई सेट ड्यू डेट निकल गई है, ड्यू डेट निकल गई है, तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन यू हैव टू रिसीव दिस आइकन, अंडर दिस आइकन। ओके, देन दिस इज द लैंग्वेज ऑप्शन, इंग्लिश एंड हिंदी, यू विल क्लिक ऑन द हिंदी। तो यू कैन चेंज योर यूआई मींस यूजर इंटरफेस फॉर इटसेल्फ, मींस कि आप अपने लिए चेंज कर रहे हैं, बट जो फाइल्स और रिसीट जिस लैंग्वेज में आपको रिसीव हो रही हैं वो उसी लैंग्वेज में रिसीव रहेंगी, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। केवल यू हैव टू चेंज ओनली फॉर यूआई मींस यूजर इंटरफेस। ओके, तो
तो ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं. दिस इज द हेल्प मेन्यू, यूजर मैनुअल एंड FAQs. देन यू विल क्लिक ऑन द FAQs लाइक रिसीप्ट, फाइल. ठीक है, तो आप यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर इजीली देख सकते हैं. लाइक you will click on the receipt inbox. How can I differentiate between physical and electronic receipt in the inbox? तो आप यहाँ से differentiate करके easily answer find out कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको help में user manual भी मिलेगा, FAQs भी मिलेंगे, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके ई ऑफिस में जो भी न्यू चेंजेस हुए हैं, जो भी आप कमिंग मंडे से जो भी आप यूज करेंगे, वो आप यही वाला वर्जन यूज करेंगे. ठीक है, आपका पुराना वाला वर्जन अभी बंद हो जाएगा, अब आप 7 वाला वर्जन ई ऑफिस का यूज करेंगे, तो ये चेंजेस आप तभी यूज कर पाएंगे. ठीक है, तो ट्रेनिंग आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. मैम कोई फाइल किसी को भेजी, उसका स्टेटस चेक करना है, कहाँ तक पहुंची, किसके पास में रुकी है, कैसे देखेंगे? हाँ सर, वो एडवांस सर्च है ना, ये जो एडवांस सर्च है, इसमें आप उसका कंप्यूटर नंबर डालेंगे. जैसे सपोज 1801, दिस इज द कंप्यूटर नंबर. क्लिक ऑन द सर्च फाइल. तो करंटली विद अभी इनके पास दिखा रहा है. उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आप नहीं देख पाएंगे, केवल उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं जब तक फाइल आपके पास नहीं आएगी. ओके ओके. और ये एडमिन सेक्शन में क्या चेंज हुआ पता लगेगा? एडमिन सेक्शन सर मतलब जैसे हमको डेलीगेशन देना है या असाइनमेंट देना है, जो हम पहले का काम करते थे. हाँ सर, वो डेलीगेशन. हेलो सर, मैडम एक्चुअली प्रिंस का है ना एडमिन सेक्शन का ट्रेनिंग कल रखा है मैंने. हाँ जी सर, एडमिन सेक्शन का एडमिन का ट्रेनिंग कल रखा है मैंने. ओके 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 फाइन. Ma'am, will we get any ready reckoner or some manual regarding this? हाँ सर, दिस इज द हेल्प मेन्यू. देन यू विल डाउनलोड. मैडम स्पीड अच्छा रहेगा इसमें? हेलो. हाँ स्पीड, हाउ विल बी द स्पीड ऑफ द ई ऑफिस? हाँ सर, स्पीड तो ठीक रहेगी, इसमें स्पीड का कोई इशू नहीं रहेगा. जैसे आपके पुराने 6 वर्जन में स्पीड का बहुत ज्यादा इश्यूज था, क्योंकि इसमें आपके सारे सर्वर्स वगैरह सर सब चेंज हुआ है ना, तो सारी स्पेसिफिकेशन हैज बीन चेंज, तो उस केस में स्पीड का कोई इशू नहीं आएगा अभी ना. अभी वाले मैम लिखते कुछ नहीं, जाता कुछ था, पहुंचता कुछ था. यस सर, 6 वर्जन में मतलब बहुत सारे इश्यूज थे रिलेटेड ई ऑफिस ना इन 6 वर्जन. मैम करंटली वी आर ऑन 5th वर्जन. 5th वर्जन ना? Yes, not yes. 5th version is we are in 5.6 version. E5 5.6. ओके. गुड आफ्टरनून मैम. इसमें स्पीड का कोई इशू नहीं. हेलो मैम. हाँ जी सर. मैम अभी क्या होता है, एक फाइल में अगर कोई दूसरा फाइल अटैच होता है तो वो जो पेरेंट फाइल है वो क्लोज नहीं करने देता है ई ऑफिस, तो वो क्या अभी सॉल्व हो जाएगा उसमें अभी वाला? हाँ जी सर, हो जाएगा, क्योंकि आप तो अभी 5.6 वर्जन पे है ना, आप 6 वर्जन पे भी नहीं, ये आपका 739 वर्जन आएगा, तो इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा सर. ठीक. हाँ जी सर. मैडम ये पूछना है, एक्चुअली ना पेरेंट फाइल को क्लोज करना है, तो एक्चुअली उसका ना चाइल्ड फाइल ऑलरेडी अटैच्ड है. चाइल्ड फाइल क्लोज नहीं है, इसलिए पेरेंट फाइल का भी है ना क्लोज करने का अलाउ नहीं करता है. तो अभी हम लोगों का इस वर्जन में वो पेरेंट फाइल क्लोज करेंगे तो चाइल्ड फाइल भी क्लोज हो जाएगा क्या, अलाउ करेगा क्या? हाँ सर, जैसे आप अभी सपोज कि आपके इनबॉक्स में ये वाली फाइल है, ये आप देख रहे हैं, ये आपके इनबॉक्स में फाइल है, ठीक है, और इसके साथ ये वाली फाइल अटैच्ड है. ओके, ठीक है, तो अगर आप ये वाली फाइल को क्लोज करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप्रूवल की नीड होगी. आप अप्रूवल लेंगे, अगर अप्रूवल की रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो इस फाइल के साथ जो फाइल अटैच्ड है वो तो ऑटोमेटिकली सर क्लोज में ही जाएगी ना. हाँ ठीक है, क्लोज में ही जाएगी ना पूरी फाइल. जब आप उसको रीओपन, नहीं था. हाँ वो क्लोज में ही जाएगी सर. गुड आफ्टरनून मैम. हाँ जी सर. मैम मेरी 2 क्वेरी थी. हाँ. एक क्वेरी तो ये थी मैम कि अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि जो माइग्रेशन होगा तो उसमें जो पुरानी फाइल्स हैं हमारी वो सब डिलीट हो जाएंगी. नहीं सर, डिलीट नहीं होंगी. जो माइग्रेशन होगा ना, तो एज इट इज जितनी भी फाइल्स आपके अकाउंट में है, फाइल है, रिसीप्ट है, क्लोज में है, पार्क में है, वो एज इट इज पूरा डेटा आपका माइग्रेट होगा. और दूसरी क्वेरी ये थी
कि जब एम्प्लॉय मास्टर डेटा का अपडेशन होता है, एमडी अपडेशन, जैसे किसी का ट्रांसफर हुआ या प्रमोशन हुआ, तो अपडेशन जब होता है तो हमारे अकाउंट की बहुत सारी फाइलें डिलीट हो जाती हैं। तो अभी क्या नए वर्जन में ये दिक्कत कभी आएगी या ये खत्म हो जाएगी? नहीं सर, डिलीट का ऑप्शन तो कोई है ही नहीं है। डिलीट तो फाइल होती अभी भी नहीं होंगी ना आपके अकाउंट में। 5th वाले वर्जन में भी डिलीट का कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। एक्चुअली कोई है ना सर, एक मिनट सर, कोई भी है ट्रांसफर होता है तब ना उसका फाइल्स हैं एग्जिस्टिंग पोस्ट से वो ट्रांसफर करता है दूसरा पोस्ट को, कुछ भी है वो अप्रूवल के हिसाब से लोकल एडमिन ने वो ट्रांसफर करता है उस फाइल्स को। ई ऑफिस में कुछ भी फाइल कभी भी डिलीट नहीं होता है सर फिजिकली, इट विल बी देयर। कुछ और डाउट्स है तो पूछ लीजिए। हेलो मैडम। हाँ जी Hello. सर, हाँ जी बताइए। हाँ जी हाँ मैडम से रिलेटेड डाउट था। जैसे पेरेंट फाइल से हम अगर कोई पार्ट फाइल बनाते हैं तो उसमें पेरेंट फाइल की भी नोटिंग प्रीवियसली देख सकते हैं क्या? या पार्ट में तो नोट 1 से स्टार्ट होगा? हाँ, नोट 1 से स्टार्ट होगा। पेरेंट फाइल अलग रहेगी आपकी, पार्ट फाइल अलग रहेगी। वो सेपरेट ओपन होगी। वो मर्ज नहीं होगी, सेपरेट ओपन होगी। ओके मैडम, थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ मैम, मैम एक डाउट है। लाइक अभी जो नोटिंग्स में टेबलर कॉलम एक्सेल से या वर्ड से कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसका पीडीएफ रेंडर करने के बाद डेटा ट्रंकेट हो रहा है हमारे वर्जन 5.6 वर्जन में। तो अभी वो डेटा ट्रंकेट होता है क्या न्यू वर्जन में भी? नहीं मैम, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आई है। इस वाले वर्जन में तो नहीं आई है। ठीक है, जब आप कॉपी। हाँ, और मूवमेंट्स मैम, मूवमेंट्स देख सकते हैं क्या? जैसे हाँ, अभी वर्जन में मूवमेंट्स का ऑप्शन है तो न्यू वर्जन में भी है? यस, दिस इज द मूवमेंट ऑप्शन मैम। ओके मैम, जो आप अभी वाले वर्जन में ऑप्शंस यूज कर रहे हैं ना, लाइक मूवमेंट, डिटेल्स, ड्राफ्ट, एडिट, सेंड, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। बट इसमें कुछ और फीचर्स ऐड हो गए हैं और उसमें थोड़े चेंजेस हुए हैं मैम। बाकी वर्कफ्लो आपका सेम रहेगा। ओके यस मैम, अनदर क्वेश्चन। यस, ये इजी फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं ये न्यू वर्जन में? क्या है? फाइल आपको क्रिएट करना है न्यू? हाँ, न्यू। यस सर, क्रिएट न्यू ऑप्शन। ओके, वही ऑप्शन है मैम, एसएफएस, और वो एसएफएस ऑप्शन जो था वैसा ही है। हाँ सर, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल का कवर आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है टाइप इज नॉन एसएफएस एंड एसएफएस। हम ये दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है नॉन एसएफएस और एसएफएस में? सर देखिए, जैसे यहाँ पर टाइप है आपका नॉन एसएफएस, तो आप यहाँ पर फाइल हेड्स ना ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एसएफएस कर लेते हैं तो ये आपको नंबर खुद से डालना पड़ता है। ओके, अच्छा, वो मैनुअली आपका एसएफएस में मैनुअल फाइल नंबर डालना पड़ेगा? हाँ, तो अगर आप यहाँ पे खुद से नंबर टाइप करें तो इसमें डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम यही रिकमेंड करते हैं। नॉन एसएफएस में रैंडम नंबर सिस्टम जनरेटेड रहेगा? यस। So it is always wise to choose non-SFS. Yes sir, you have to use non-SFS. Yeah. And nature electronic or physical? Electronic sir, electronic. तो है always. Electronic always. Yes sir. Description में क्या डालेंगे? Sir, nature is electronic and type is non-SFS. Okay. Okay. And main category, subcategory? Sir, what is the main category of this file, like establishment related matter, finance, budget, cash account? Okay. And subcategory? Yes. Subcategory under with establishment subcategory, like you have to allowances as well. Okay. Sir, in this phase only two option is mandatory. First option is file number, second is description. Other fields are optional. It is not mandatory, sir. Okay. Yes. Okay. मैम, ऑरेंज नोट और येलो नोट And orange note and yellow note ये ऐसे ही रहेगा क्या? यस सर, येलो नोट और ग्रीन नोट में वही सेम रहेगा जैसे आपका अभी भी है। ग्रीन नोट आपका दिस इज द फाइनल नोट, कांट बी एडिटेबल, कांट बी डिलीट।
देन येलो नोट इज जस्ट लाइक ए ड्राफ्ट नोट, रफ नोट, ठीक है। तो अगर आप अपनी नोटिंग में कंफर्म नहीं है या जो भी आप अगर फॉर डिस्कशन के लिए यूज कर रहे हैं तो यू विल क्लिक ऑन दी एड येलो नोट। देन अगर आप कंफर्म हो जाते हैं तो हाँ, तो येलो नोट, सॉरी सर, पुल बैक, yes, pull back option is also available sir. This is a pull back option. Okay. डाउनलोड वाला भी ऑप्शन है। Download. Yes sir, download option is also available now. This is the download option. This is the print option. Okay. With reasons. With reason, I have to define the reason also why I am pulling it back. हाँ ठीक है, also right. हाँ ठीक है। ठीक है सर। मैडम, हाँ जी सर। जो पार्ट फाइल हम किसी को भेजते हैं तो उसमें पेरेंट फाइल की नोटिंग्स वो देख पाएंगे क्या, या पार्ट फाइल अलग इंडिविजुअली अलग ही जाएगी उनको? सर अगर आप मेन फाइल के साथ अटैच करके पार्ट फाइल को भेज रहे हैं तो दोनों फाइल्स जाएंगी उनके पास, ठीक है। अगर आपने पार्ट फाइल को मेन फाइल या पेरेंट फाइल के साथ अटैच नहीं किया है, सिंगल पार्ट फाइल आप भेज रहे हैं तो केवल सिंगल पार्ट फाइल ही जाएगी। ओके। Elaborate in the part file some confidential thing. If I want to send it to some competent authority, so how it will be possible? Can you just Madam? Madam? Hello, yes sir. You are not audible. What I am asking, part file without the comments of the earlier notes, can I send to my subordinate or competent authority? Either way. Yes sir, part file. Can you just elaborate that thing? हाँ हेलो सर, एक्चुअली मैडम का कुछ इश्यू आ रहा है सर, वो कनेक्ट करने में कुछ वो उसका ऑडियो का इश्यू है। मैडम ये बोल रहा है कि वो नॉर्मल फाइल जैसा ही हम लोगों भेज सकते हैं। हेलो सर। हेलो, yes sir, am I audible sir? Yeah, please continue. Yes. हाँ सर, आप जैसे नॉर्मली फाइल सेंड करते हैं तो आप पार्ट फाइल भी नॉर्मली सेंड कर सकते हैं विद योर सबऑर्डिनेट एंड विद योर रिपोर्टिंग ऑफिसर एज यूजुअली। Ma'am, just if you please demonstrate on part file related. जी। Okay.
सर हमने यहाँ पर एक नया पार्ट क्रिएट किया. Okay, then click on the create part. This is the part file. Okay, file number is part 2 successfully created. Okay, left hand side is a noting part and right hand side is a correspondence. Then आप यहाँ पर receipt को attach करेंगे, जो भी receipt आपके यहाँ पर available रहेगा. Then receipt attach किया. Then green note, yellow note. Click on the add green note. Okay, then send to the reporting officer. Okay. Okay, then save as yes sir. Then enter the to name also. Then send button. नॉर्मली जैसे आप फाइल सेंड करते हैं वैसे ही आप पार्ट फाइल भी सेंड करेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. Okay. Madam, what is the difference, madam? Then it's just like a normal under file. Then what is the difference? This create part. किसमें सर? क्रिएट पार्ट में. हाँ क्रिएट पार्ट. फाइल नंबर में डिफरेंस आएगा ना. फाइल नंबर में जो आप फाइल पार्ट क्रिएट करेंगे ना, तो जब आप पार्ट क्रिएट करेंगे तो फाइल नंबर के लास्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा आपको दिखेगा. Okay, but this part file can move individually also. हाँ, आप नॉर्मली पार्ट फाइल जैसे नॉर्मल फाइल सेंड करते हैं वैसे भी सेंड कर सकते हैं. नो इशू सर. Okay. ओके. ओके सर, सेशन वाइंड अप करें फिर. मैम तो ब्रॉडली क्या मेजर डिफरेंस है? मतलब मैम हम लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे, तो बाकी सब तो आप जैसा दिखा रही हैं एज इट इज ही है जैसे हम लोग चल रहे हैं. ब्रॉडली कुछ मेजर चेंजेस आपको लग रहा है सब लोग बताना. सर चेंजेस तो हुए हैं, मतलब रिसीव्ड मॉड्यूल में विंडो पेज चेंज हो गया है, वो अच्छा लग रहा था. हाँ, विंडो पेज चेंज हो गया है सर यहाँ पर. और आपने ये चीज देखा होगा कि नोटिंग में भी हम यहाँ पर मल्टीपल विंडोज ओपन कर पा रहे हैं एट ए टाइम. ओके, दिस इज द न्यू फ्रेश नोट, दिस इज द प्रीवियस नोटिंग. ओके, देन दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट. प्रीवियस नोटिंग पहले राइट साइड में हुआ करता था, वो ऊपर आएगा. हाँ, यहाँ पर रहेगा. देन राइट हैंड साइड में भी आप यूज कर सकते हैं प्रीवियस नोट्स ऑप्शन. दिस आइकन इज हियर, प्रीवियस नोट्स. ओके, तो यहाँ पे आप मैम अपलोड साइज इंक्रीज हुआ है क्या? किसमें सर? अपलोड साइज नहीं, अभी यहाँ पर नोटिंग में नहीं सर, यहाँ पर तो कोई साइज लिमिट कई डॉक्यूमेंट हमारे बहुत हैवी रहते हैं, उसको अपलोड करने में दिक्कत जाती है. सर अभी तक इसमें कोई साइज लिमिट तो नहीं दी है. नोटिंग साइड में आप कोई पीडीएफ, कोई ऑडिटी सब कुछ अटैच कर सकते हैं. ठीक है, कोई साइज लिमिट इसमें तो अभी नहीं दिया है. नहीं मैम, पुराने वाले वर्जन में तो हमको अपलोड करने में दिक्कत जाती थी. हाँ, इसमें तो सर नहीं जाएगी. इसमें अभी आप एक बार ट्राई करके देखिए. सर हमारा वो इंस्टेंस का हिसाब से ये लोगों कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करता है, साइज का फिक्स करके देता है सर. वो ऐसा वो पे नहीं रखता है. हाँ ठीक है सर. कल भी एक सेशन है 2:30 से फॉर ई फाइल. हेलो. Yes, madam. 1 minute, madam. That one is for admin users का है ना मैडम? नहीं सर, फॉर PIMS, पर्सन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एडमिन रिलेटेड एक्टिविटी ना. तो उसमें जो भी मास्टर ट्रेनर्स हैं एडमिन से रिलेटेड जो भी वर्क करेंगे, तो टुमारो 11 o'clock PIMS ट्रेनिंग. ओके, देन 2:30 जो हमारा कल कैंसिल हुआ था, तो 2:30 से वो सेशन भी तो होना है ना कल. मैडम कल इवनिंग में मत रखिए, एक्चुअली ना हम लोगों शेड्यूल कर लेंगे कल. ठीक है सर, फोन पे डिस्कस कर लेते हैं. बाकी कल मॉर्निंग में PIMS का एक सेशन रहेगा एडमिन रिलेटेड. ओके सर. इट्स ओनली फॉर द एडमिन यूजर्स, नॉट फॉर द नॉर्मल यूजर्स. हाँ, नॉट फॉर द नॉर्मल यूजर्स, ओनली फॉर एडमिन रिलेटेड एक्टिविटी. ओके, थैंक यू सो मच सर. ओके, थैंक्स. थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू.